In today's session, I would want we finish off with the chapter today because two important illustrations are to be done, and then similar to those illustrations, we have exercise sums. Okay, so let's first complete those illustrations which are pending, and then if time permits, we can also solve together the exercise sums. Okay, or else those exercise sums will be given to you as your homework. Then फटाफट चलो illustration start करेंगे 30. Go to illustration 30 everybody, फटाफट start reading, start writing down the things. Illustration 30 फटाफट. Okay, I'm better sharing the screen now with you. I'll be sharing the screen now with you. Let's see the sum, 30th sum. The project क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं. A project is conducted by a group of the student of an MBA institute to know. But what do they want to know? They want to know that the relationship between the results of the final year of the school and the final year of the graduation for the students. The following information is obtained and a sample of 10 students regarding the percentage of the marks are taken. So वहां पर लिख लेंगे n अपना 10 है. Everybody write it down. N is equal to 10. N is equal to 10. लिखना शुरू कर देंगे. But just a second, I'm facing some problem with the writing pad. I'll just fix it up. You copy down the things. You write it down in your notebook, the things, whatever you understand. Okay, and I'll get back to you. Okay, so now 10 students के relating percentage और वो सब हमने देखा है. तो n यहाँ पर 10 है. They have already mentioned that n is equal to 10
माई n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x माइनस 65 का आंसर -2 है। अब यहां जरा ध्यान, सिग्मा x माइनस 65, x माइनस x minus 65 is -2 given to us. X minus 65 is -2. Then x, y minus 60, we are given with 2. Sigma x minus sigma x minus 65 का स्क्वायर, sigma x minus 65 का स्क्वायर, that's equal to 176. सिग्मा y माइनस 60 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो दैट्स 140, एंड सिग्मा x माइनस 65 y माइनस 60, that's equal to 141. Now this information is given to us, and along with that n is equal to 10. ऐसा हमें दिया है, yes or no? Now x माइनस 65 किया और उसका टोटल अगर हम करेंगे तो ये -2 आ रहा है। ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर द अर्लियर सम, द स्टार्टिंग सम्स, इफ यू रिमेंबर, हमने कुछ ऐसा सीखा था, जरा याद करो बेटा, ऐसा कुछ सीखा था कि जब हम समेशन x माइनस x बार का टोटल करते थे तो वो हमेशा 0 आता था, सिग्मा y माइनस y बार का टोटल करते थे तो हमेशा 0 आता था, हमारे स्टार्टिंग के सम। और दिन को देखो, वो सम मैं तुमको दिखा भी सकता हूं, मेरे पास वो सम्स हैं। देखो ये 2.2 का, 2.2 तो नहीं कह सकते, 2.1 में ऐसा हमने देखा था, 2.1 में हमने ऐसा देखा था। तो 2.1 में रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं, अभी टेंशन नहीं, अपने पास सारे सम्स की लिस्ट पड़ी है। तो ये जो हम अभी कर रहे हैं उसका मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा देता हूं ताकि लाइफ में टेंशन ना रहे। देखो, हम जब ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार कर रहे थे तो टोटल हमेशा 0 आता था अपना। ये एक्सरसाइज 2.1 का सम नंबर 3 है कि जहां पर मैंने x माइनस एक्स बार किया, y माइनस वाई बार किया है। डू यू गेट दैट? तो यहां पर जरा ये सम में देखो कि जब मैंने x माइनस 65 किया तो उसका टोटल आ रहा है -2। એનું ટોટલ આવે છે એટલે આ 65 મારો x બાર નથી, આ 60 થી પણ જે મેં y ને માઈનસ કર્યો તો મારો આન્સર 2 આવે છે। તો એ x બાર થી નથી મેં માઈનસ કર્યું, I have subtracted from some assumed numbers, I have subtracted from मेरी मर्जी का कोई भी नंबर। x बार से करते बेटा, यहां जरा ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिग्मा x माइनस एक्स बार, मतलब अगर 65 मेरा x बार होता ना तो यहाँ पर टोटल 0 आना चाहिए, 60 अगर मेरा y बार होता तो यहाँ पर टोटल 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। मतलब 65 is my assumed number, 60 is my assumed numbers, and whenever I do the subtraction from assumed number, so that becomes u for me, sigma u. This will become sigma v for me. This is -2, this is +2। फिर ये 65 का स्क्वायर है तो वो u स्क्वायर हो जाएगा 176, ये स्क्वायर है तो वो v स्क्वायर हो जाएगा 140, और ये हो जाएगा सिग्मा u v विच इज 141, और n हमें पहले से ही दे के रखा है। तो यहां पर हमको बात समझने की क्या थी कि x माइनस जो 65 दिया है वो हमने अज्यूम्ड नंबर में से लिया है, तो अज्यूम्ड नंबर में से लिया तो x माइनस 65 तो वो u का फॉर्मूला है। फिर y में से हमने ये जो 60 माइनस किया, अगेन वो अज्यूम्ड नंबर में से किया है,
तो ऐसा हम करते हैं तो वो v का फॉर्मूला हो जाता है। तो हमें इन शॉर्ट uv सीधा सीधा नहीं दिया, ऐसा कान घुमा के हमको पकड़ रहे हैं, लेकिन हम तो स्मार्ट हैं, हमको पता चल गया कि ये भले uv सीधा सीधा नहीं दिया है, बट दिस इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन इज। एंड नाउ इफ यू लुक इनटू द सम, all information are there, you are just supposed to apply the formula and you have to get the answer। कौन सा फॉर्मूला लगेगा थम्स अप, कौन सा फॉर्मूला लगेगा थम्स अप? मोरे 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 अनम्यूट, मोरे विनीता अनम्यूट। सर शॉर्टकट मेथड। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू वी अपॉन अंडर रूट सिग्मा यू स्क्वायर माइनस यू द होल स्क्वायर। वेरी गुड मोरे, वेरी गुड। आर यू श्योर ये वाला फॉर्मूला है मोरे? हाँ पक्का? हाँ पक्का है? हाँ। दे हाई फाइव, दे हाई फाइव। 10 बार लिख के मेरे को व्हाट्सएप करना। हाँ 10 बार लिख के ये फॉर्मूला मेरे को व्हाट्सएप करना। मोरे जो बोल रहे हैं फॉर्मूला गलत है, मोरे जो बोल रहे हैं फॉर्मूला गलत है। मोरे अनम्यूट मत होना, अनम्यूट मत हो, तुम म्यूट ही रहो, तुम म्यूट ही रहो। अच्छा दूसरा कौन है? दीक्षित भाई, दीक्षित 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 अनम्यूट हो जा बेटा। दीक्षित। यस सर। हाँ दीक्षित बेटा, फॉर्मूला देख रहा था, किधर है? ना तो बता बता बता। सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। वेरी गुड दीक्षित। तुम भी बेटा 10 बार लिख के मेरे को व्हाट्सएप करना। तुमने भी गलत बोला है फॉर्मूला, तुमने भी फॉर्मूला गलत बोला है। सुहानी सुहानी सुहानी। यस सर। हाँ सुहानी। एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। एक मिनट सुहानी, एक मिनट एक मिनट। मोरे मोरे किधर है? यस सर। हाँ बेटा उसने फॉर्मूला बोला, तुमने सुना? सर एन रह गया था इंटू करना। हाँ एन रह गया था। अभी 10 बार लिखेंगे तो एन कभी नहीं रहेगा। देख तू देख, एन अब कभी नहीं रहेगा 10 बार लिखने के बाद। हाँ तो दे चालू करता तो आगे आगे आगे। एन सिग्मा यूवी, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस यू द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस वी द होल स्क्वायर। ओहो सुहानी, आर यू श्योर यही फॉर्मूला है? पक्का? अच्छा दिवसे, सुहानी ने जो कहा फॉर्मूला बराबर है दिवसे? हाँ सर। बराबर है, बहुत हाँ। बढ़िया। जानवी 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 ना सर નથી બરાબર। तो फोटो सूचे जरा बोल तो, फोटो सूचे जानवी। સર એ નીચે સિગ્મા બોલવાનું ભૂલી ગઈ હતી। नहीं એટલે ફોર્મ્યુલા શું છે તું બોલ તો। n સિગ્મા uv। हाँ अरे यार આપણે આપણે માર यार डैडी हैरान करे जी यार आवाज करी કરીને। हाँ जानवी अनम्यूट यार, वांधो नहीं, बोलवा दे डैडी ने। સર n हाँ, સિગ્મા uv इंटू सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन होल अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस v द होल स्क्वायर। हाँ तो एने सुहानी पण એ જ બોલેલું બેટા, એ જ ના સર પણ એ સિગ્મા બોલવાનું ભૂલી ગઈ હતી। એવો તો મન તો મેં हाँ। તો બરાબર લાગ્યું, મન તો બરાબર। શું કે નિત્યા બરાબર છે? નિત્યા ફોર્મ્યુલા हाँ सर। ફોર્મ્યુલા બરાબર છે? सर ए लोग बेउ छे ने एक जगह सिग्मा बोलવાનું ભૂલી ગયા, સિગ્મા વી ધ હોલ સ્ક્વેર આવશે। આ જો આપણો નવો ઓડિટર આવ્યો છે આપણો કે બંને જણા સિગ્મા બોલવાનું ભૂલી ગયા છે। બેટા સુહાનીના ને જાનવીના ને બધાના ફોર્મ્યુલા બરાબર છે।
હાલો સમ સોલ્વ કરીને મને આન્સર આપો. ચલો બાકી મોરે અને દીક્ષિત 10 बार लिख के भेजो बेटा. अच्छा ऐसा करो ना, ऐसा गंदा ख्याल आ रहा है मेरे को, सारे फॉर्मूला लिख के भेजोगे 10 बार जितने भी फॉर्मूला हैं. बहुत बढ़िया, शाबाश. ये होती है बात. विनीता ने ऐसा थम्स अप दिखा दिया. ओके सर, मैं सब लिख के भेज दूंगी. ये होता है बेटा जज्बा होता है एक गलती का. ये देखो जज्बा है ये. बहुत बढ़िया विनीता. चलो फटाफट नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एंड गिव मी द आंसर. લેક્ચરના છેલ્લા દિવસે આપણે ફોર્મ્યુલામાં મગજમારી કરીએ છીએ. વિચારો. R is equal to n sigma uv minus sigma u into sigma v upon root n sigma u square minus sigma u the whole square n sigma v square minus sigma v the whole square. So n is my 10. Sigma uv is 141. Sigma u is minus 2. Pelu છે 2 upon root 10 into sigma u square is 176 minus minus 2 का square 10 into 140 minus 2 का square. So this is 1410 माइनस अभी नहीं लिखता हूं, नहीं तो जनता 1760 minus 4 into root 1400 minus 4. So 1410 plus 4 upon root, but a 1760 minus 4, that is 1756 into root 1756 into root 1396. So 1414 1756 into 1396, जो भी आंसर आया उसका हमने रूट किया. So that comes to 1565.68. So 1414 divided by 1565.68. So 0.903 ऐसा कुछ आ रहा है बेटा मेरा. तो जिसको 0.90 लेके चलेंगे तो भी चलेगा, जिनको हम खाली 0.90 लेके चलेंगे तो भी चलेगा. बेटा समझ में आया? समझ में आया? इन्होंने अपने को ये यूवी वाली बातें इन्होंने हमसे ऐसे छुपा छुपा के रखी थी, लेकिन हमने, तुम बेटा कैसे हो? जल्दी बेटा शोल्डर ऊंचा करके बोलो. स्मार्ट है, जल्दी बोलो. हाँ तुम हो बेटा स्मार्ट. सो तुमने क्या करा? तुमने क्या किया बेटा? यू कुड गेट द आंसर ऑन योर ओन एंड वी कुड फाइंड इट आउट के दिस इज नथिंग बट के भाई अपना यूवी है, वो तुमने फाइंड आउट कर लिया. यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट सम. इलस्ट्रेशन 31 पर चले जाओ. शाबाश, फटाफट इलस्ट्रेशन 31 पे चले जाओ. ये भी इंपॉर्टेंट है. इलस्ट्रेशन 31. नाउ 30 was completed. Let's go on to the 31. Now to study the relationship between age of the years teenage children and the daily requirement of the protein in grams, the following sample of again 10 children are obtained. So मेरा n10 है, लिख दो. सिग्मा 40 दिया है, सिग्मा x दिया है 140, सिग्मा y दिया है 150, then
सिग्मा x माइनस 10 का स्क्वायर दिया है 180, सिग्मा y माइनस 15 का स्क्वायर दिया है 215, सिग्मा x माइनस 10, y माइनस 15, x minus 10 and y minus 15 is 60 given to us. Okay. So यहाँ जरा ध्यान, बेटा you don't start the sum with me, you wait, you just check the solution first how I am doing, फिर तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा इलस्ट्रेशन कॉपी मारने का, पूरा मौका दिया जाएगा। पहले समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब सिग्मा x मुझे दिया है 140, सिग्मा y दिया है 150, तो x बार का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं विच इज सिग्मा x अपॉन 10, सो 140 अपॉन 10, तो मेरा x बार आ रहा है 14। देन y बार का मेरा फॉर्मूला है सिग्मा yi अपॉन n, दैट इज 150 अपॉन 10, तो मेरा y बार का फॉर्मूला आ रहा है, और फॉर्मूला लगाने के बाद y बार आ रहा है 15। आर यू गेटिंग इट? अब यहां जरा देखो, x माइनस मैंने 10 किया, x माइनस मैंने 10 किया, डिड आई डू विथ x बार? क्या मैंने x बार से वो क्या माइनस किया है? नहीं किया है, x बार से वो माइनस नहीं किया है। अब यहां जरा चेक करो, यहां पर ये 15 है एंड कोइंसिडेंटली y बार भी कैसा है? 15 है, बराबर है। लेकिन हम एक ही सम में दो तो फॉर्मूला का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो हमने पहले वाले में क्या देखा, x में से मैंने x बार माइनस नहीं किया है, लेकिन y में से मैंने y बार जो माइनस किया, तो हम जो अजम्पशन ले रहे थे ना, हम जो यहाँ पर x माइनस ये जो 10 हमने जो अजम्पशन लिया, और यहाँ पर भी ये जो मैंने अजम्पशन लिया, कोइंसिडेंटली वो y बार के जैसा निकला। तो वो कोइंसिडेंटली निकला है ना, बाकी x में तो ये अजम्पशन ही वाला है, तो यहां पर ऐसा मैं लिख सकता हूं, ये है मेरा सिग्मा u स्क्वायर ही है ये 180, और ये मैं लिखूं, ये वाला मैं लिखूं y माइनस वाई बार, तो वो गलत है, बिकॉज हम एक ही फॉर्मूला में दो कंसेप्ट नहीं लगा सकते, तो ये हम सिग्मा v स्क्वायर ले लेंगे। और इसको v स्क्वायर लेने का मतलब क्यों है? क्योंकि ये जरा देखो, यहां पर सिग्मा x माइनस 10 एंड y माइनस मैंने 15 किया है, तो एक में अजम्पशन वाला है ना, तो वो है मेरा सिग्मा uv। ये जो है, जो तीसरी आइटम दी है मेरे को, वो है सिग्मा uv विच इज इक्वल टू 60। अब जरा यहां ध्यान देखो, मेरे पास n अवेलेबल है, चेक करो, n है मेरे पास, कितना है n जरा चेक करो, आई हैव n 10, सिग्मा u स्क्वायर है 180, v स्क्वायर है 215, uv है 60, ठीक है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा के आंसर लेके आऊं? हम कौन सा फॉर्मूला लगा के आंसर लेके आएंगे? सुहानी फ्रॉम निजामपुरा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लास्ट सम में जो यूज किया था वो कौन सा है, कौन सा है लास्ट सम वाला, कौन सा है? r इज इक्वल्स टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u the whole square into under root n sigma v square minus sigma v the whole square। अच्छा, सुहानी ने जो ये फॉर्मूला बोला, जरा चेक करो, क्या हम वो लगा पाएंगे?
क्या हम वो लगा पाएंगे? क्यों नहीं लगा पाएंगे? कौन बोलता है क्यों नहीं लगा पाएंगे? फरहीन, फरहीन, वाई क्यों नहीं लगा पाएंगे? सर यहाँ पर सिग्मा यू और सिग्मा वी नहीं दिया है, एक्स और वाई है। एक्स और वाई है, मेरे पास सिग्मा यू और सिग्मा वी नहीं है। वेरी गुड। कैन आई से यहाँ पर ये पूरा सम देखो, मैंने जानबूझ के सब सर्कल किया था। n 10 देन सिग्मा v स्क्वायर u स्क्वायर uv, जो मैं सर्कल करी हूं जानबूझ के मैंने सर्कल किया ताकि आपकी नजर उस पर पड़े। जानबूझ के मैंने सर्कल किया। लेकिन देखो वो जो सुहानी ने फॉर्मूला बोला वो लगाने के लिए मेरे पास सिग्मा u भी होना चाहिए, मेरे पास सिग्मा v भी होना चाहिए। क्या वो है? नहीं है। And that is why the sum is important. It's not there with us, but we have to find that. That's our first step. કે આપણે સિગ્મા u અને સિગ્મા v find out કરીશું, એ આપણો પહેલો સ્ટેપ છે। એ મળી જશે પછી સુહાનીએ જે ફોર્મ્યુલા કીધો એ આપણે લગાડી દેશું। બરાબર છે? તો વહાં પર નોટ लिखी जाए, नोट लिखी जाए। As per the information given in the question, as per the information given in the question, n sigma u square, sigma v square and sigma uv are given, but sigma u and sigma v, sigma u and sigma v are missing. Sigma u and sigma v are missing. Hence our first step, will be to obtain, sigma u and sigma v. Okay, now can you see the difference between the illustration 31st and the 30? difference समझ में आ रहा है? इसके पहले वाला जो सम किया उसमें n सिग्मा u सिग्मा v u स्क्वायर v स्क्वायर uv બધું જ આપ્યું હતું અને આપણે ખાલી સમજીને ફોર્મ્યુલામાં લગાવો તો આન્સર લઈને આવવાનો હતો। આ સેમમાં શું મિસિંગ છે? સિગ્મા u મિસિંગ છે અને સિગ્મા v મિસિંગ છે। अब वो कैसे मिलेगा? चलो लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। मुझे फाइंड आउट करना है सिग्मा u। अब सिग्मा u मिलेगा कैसे? मैंने x में से मेरा अज्यूम्ड मीन क्या था 10, वो मैंने सब में से माइनस किया है। तो हमने u का फॉर्मूला क्या लगाया था? x माइनस 10। यस और नो? समेशन u में I had applied the formula summation x minus 10, तो u का फॉर्मूला था x minus 10। अब ये समेशन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ तो it will be sigma x and it will be summation of 10. It will be sigma x and summation of 10। ये वाली सिग्मा वाली साइन को हम ये ब्रैकेट के अंदर लेके चले गए और सिग्मा यू वो हमने कैसे ढूंढा था? x में से हमने 10 माइनस करके ढूंढा था। देखो ना, क्योंकि x माइनस फिर 10 का स्क्वायर में हमने u स्क्वायर लिख लिया था, तो u के बदले हमने यहाँ पर x माइनस 10 लिख दिया और फिर समेशन को हम ब्रैकेट में लेके गए। बराबर है? अब जरा ध्यान दो, समेशन x क्या दिया है सम में? यस, वी आर गिवन समेशन x टू बी इक्वल टू 140।
एंड समेशन 10 मेरे को करना है, समेशन 10 मतलब समेशन का यहाँ पर कितना क्या मतलब होता है कि जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उनका टोटल, समेशन इज व्हाट, जितने भी नंबर्स हैं उनका टोटल। तो कितने नंबर हैं अपने को सम में दिए, देखो 10। summation means the total of n numbers, so I am here given with summation, n is 10 numbers given to us, और ये सिग्मा x पहले से ही सम में है मेरे पास। so 140 minus 100 अगर हम करेंगे तो सिग्मा u का आंसर मेरा 40 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है कि सिग्मा u मिसिंग था, तो सिग्मा u है क्या, सिग्मा x माइनस 10, क्योंकि u हमने कैसे निकाला था, x माइनस 10 करके। फिर ये समेशन की साइन ब्रैकेट के अंदर लेके जाने की, समेशन x एंड समेशन 10। summation x is 140 and summation 10 is 10 observations were taken, so 10 into 10 we are supposed to do, so 140 minus 100, तो मेरा आंसर सिग्मा u का 40 आ गया है। सिग्मा v कैसे मिलेगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा v। अच्छा तुम ट्राई करना चाहोगे सिग्मा v, ट्राई मारो बेटा। I just love when you use the word sir we want to try, because then I give you the answer, right? बेटा बहुत सारे लोगों के आंसर आए हैं, लेकिन जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हिसाब से तो बहुत कम जन लोगों ने आंसर भेजा यार। कम ऑन पीपल प्लीज। हाँ, अब थोड़े लोगों का जवाब ज्यादा आना शुरू हुआ है, ज्यादा आना शुरू हुआ है। अच्छा एनीबडी गेटिंग द आंसर 0 0? सर 0 आ रहा था तो मेरे को लगा मेरा आंसर गलत होगा। सिग्मा v, तो दैट इज नथिंग बट सिग्मा v। v हमने कैसे निकाला था, हाउ डिड वी फाइंड v, it was y minus 15, okay, so that will be sigma y minus sigma 15. Sigma y was given to us, it's 150, so 150 minus n is 10, so my ultimate answer will be 150 minus 150 0। तो सिग्मा v भी आ गया और सिग्मा u भी आ गया। और v कैसे ढूंढा था मैंने, y माइनस 15 करके, तो उसी को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर सिग्मा u को हम ये ब्रैकेट के साथ अंदर लेके मल्टीप्लाई कर बैठे, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर बैठे, एंड देन अल्टीमेटली वी गॉट द आंसर। एंड नाउ डू यू सी यू हैव एवरीथिंग, you have n, sigma u, sigma v, u square, v square, and sigma uv. Will you give me the final answer for r? But will you give me final answer for r, please? Please. But let's apply the formula. R is equal to n sigma uv minus sigma u minus sigma u into sigma v upon root n sigma u square minus sigma u the whole square n sigma v square minus sigma v the whole square. N is equal to 10, sigma uv is 60, sigma u we just found out 40, 40 into sigma v is 0, then sigma u square is 180, sigma u the whole square, that is 40 ka square,
sigma v square is 215 minus sigma v the whole square, that is 0 का square. So 10 into 60 is 600 minus शून्य 1800 minus 1600 2150 minus शून्य तो 600 upon root 200 into 2150 तो 600 upon 200 into 2150 जो भी आंसर आया रूट मारा 655.74 तो 600 divide by 655 600 divide by 655.74 0.914 को 91 ले लोगे तो भी चलेगा बेटा 91 ले लोगे तो भी चलेगा 914 क्या हो तो उसको राउंड ऑफ करके 92 कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ठीक है अब बेटा आज के जो दोनों सम्स थे उसमें फर्क समझ में आ रहा है और सिग्मा यू और सिग्मा वी को ढूंढने का ये नया फॉर्मूला है कल की जो एग्जाम होने वाली है तुम्हारी कल है कि परसों है सैटरडे है ना टेस्ट यू हैव कोरिलेशन टेस्ट ऑन सैटरडे तो मेरे को ये लग रहा है ये दो इलस्ट्रेशन जो है ना उसमें से मेरे दो या एक फेवरेट है इन दोनों में से कोई एक तो तुम देखोगे सैटरडेनी टेस्ट में कोई एक तो तमने जोवा मळशे ज बराबर अच्छा आना जेवो सिग्मा यूवी वाળો हजी एक एक्सरसाइज में सम छे एवो एक करिए कॉन्फिडेंस लावा माटे हजी एक एवो एक्सरसाइज में सम छे पण हूं नहीं करूं सर शू कॉन्फिडेंस नहीं आवे आई एम नॉट गोना डू इट आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी आई एम नॉट गोना डू दैट come on beta let's see that sum let's find it out section f पर आ जाओ section f पर आ जाओ 10th वाला सम दिख रहा है 10th वाला सम दिख रहा है the information regarding the sales and the expense of the 10 firms are given below x बार दे दिया है y बार दे दिया है सम लिखना शुरू करो चलो स्टार्ट करो आई विल शेयर द स्क्रीन फॉर दोज who are not having the sums with them nor a textbook x bar y bar हाँ प्रभु हाँ प्रभु sum number 10 बेटा मुझे क्यों लग रहा है कि ये सम भी तुम करवाओगे मुझसे यार मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग तो आ रही है शुरू कर दूं कि तुम ट्राई करना चाहोगे शुरू कर दूं सर यू हैव गॉट द राइट फीलिंग स्टार्ट द सम अच्छा मैं खाली सम लिख के रखता हूं बस तुम लोगों के लिए ऐसा मैं खाली सम लिख के रख रहा हूं ठीक है ये है सेक्शन ई का ये लास्ट सेक्शन है सेक्शन एफ सेक्शन एफ का सम नंबर 10 now x bar given to us is 58 y bar given to us is 14 sigma x minus 65 का square is 850 sigma
y minus 13 का स्क्वायर is 32 and then sigma x minus 65 and y minus 13 का है 0. अब जरा बेटा चेक करना, x बार 58 है, y बार 14 है, तो यहां पर मैंने x minus 65 लिया है, not x bar but the assumed number. I did not take the x bar but I have took the assumed number, so this will become my sigma u square 850. Then y bar मेरा 14 है, जबकि यहां पर मैंने y bar minus 13 किया है, तो ये nothing है. Again I have done it from the assumed numbers, so it's my 32 sigma v square. Then this is 65 and 35, that is uv, which is 0. अच्छा n कितना है, जरा उंगली पे इशारा करके बताओ, n कितना है? 10 10. ओके 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 ओके, खबर पड़ी गई बेटा, खबर पड़ी गई, खबर पड़ी गई, हाँ खबर पड़ी गई. So my n is equal to 10. So this is n sigma u square sigma v square sigma uv. What are we missing with? Sigma u and sigma v. ये दोनों ही चीजें मिसिंग है, वो दोबारा ढूंढनी पड़ेंगी. तो चलो ढूंढते हैं, चलो 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 ढूंढते हैं. So how will I get sigma u? So sigma u is nothing but sigma x minus 65. Now sigma x minus 65, अगर यहाँ पर ये जो u था उसके बदले हमने ऐसा अगर लिखा, तो सिग्मा की साइन अंदर लेके जाओ ब्रैकेट में, सिग्मा x माइनस सिग्मा 65. सर, ओ सर, घंटड़ी वागी, सिग्मा x से नहीं आलू है यार, यहाँ तो कौन बताएगा कैसे मिलेगा सिग्मा x, कैसे मिलेगा, कौन बताएगा? चार्मी, चार्मी. यस सर. हाँ चार्मी, सिग्मा x. एक्स बार નો ફોર્મ્યુલા લગાવીને સિગ્મા xi ને સિગ્મા yi ફાઇન્ડ કરશું. એક મિનિટ ચાર્મી, પહેલા શું કરીશું આપણે? પહેલા શું કરીશું? x બાર અને y બાર નો ફોર્મ્યુલા લગાવીને સિગ્મા x એન્ડ સિગ્મા y ફાઇન્ડ કરશું. અચ્છા, x બાર નો ફોર્મ્યુલા શું છે ચાર્મી? મને તો એ પણ યાદ નથી. સિગ્મા xi upon n. ઓકે, એટલે પહેલા ફોર્મ્યુલા લગાડવાનો. x બાર નો આન્સર છે મારી પાસે 58, રાઈટ. પછી શું કરું? 58 છે, સિગ્મા x ખબર નથી, n is 10. તો સિગ્મા xi is equals to 58 into 10 580. वेरी गुड. तो यहाँ पर बेटा सिग्मा x भी नहीं दिया था, लेकिन हमने ढूंढ लिया. उसी तरह से y बार का फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा yi अपॉन n, y बार इज 14, sigma yi I don't know, divide by 10, therefore sigma yi is equal to 14 into 10 140. तो यहाँ पर सिग्मा xi एंड सिग्मा yi भी नहीं था, तो सिग्मा x मेरे को मिल गया 580, and sigma is nothing but the summation of n numbers and n is 10. So 580 minus 650. So 580 minus 650, if I do, I'll get minus 70. I'll get minus 70. सिग्मा v कैसे मिलेगा? y माइनस मैंने 13 करा है, y माइनस हमने 13 करा है, समझ रहे हो? सो y माइनस 13 किया है, तो ये सिग्मा का साइन अंदर लेके चलो, सिग्मा की साइन अंदर लेके चलो, सिग्मा y सिग्मा 13, तो सिग्मा y वो अभी हमने ढूंढा 140,
and this is 10 into 13. So 140 minus 130, that is positive 10. And here it is minus 70, and here it is positive 10. Okay. बेटा 2-3 चीजें मिसिंग थी, लेकिन आई एम सो लकी टू हैव अ स्कॉलर बैच लाइक यू. तुम लोगों ने एकदम ढूंढ निकाला यार, जो भी ढूंढने का था. मां कसम मजा आया, मां कसम. चलो अब मेरे को फाइनल आंसर दे दो. वो नहीं करूंगा यार सर, તમે હર વખતે કહીને કોઈ નહીં કरूंगा આખું સમ કરાઈ દો છો યાર, અને અમને આમ ફીસ આમ પૂરી વસૂલ થઈ જાય છે યાર. હાલો હાલો હાલો, give me the final answer. I gave you everything, you give me the final answer. बेटा 0.78 or 79, 0.78 or 0.79 is the final answer. After applying the n sigma uv वाली formula, after applying the uv वाली formula, अपना कुछ पॉइंट r का आंसर, अपना r का आंसर कुछ 0.786 ऐसा आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ करके 79 भी लिख सकते हो, 78 भी लिखेंगे चलेगा. 786 आ रहा है तो 0.79 r का आंसर. n सिग्मा uv वाली ही फॉर्मूला लगानी है. ओके बेटा, how many of you getting 0.79? give me thumbs up. 0.79 आ गया. 0.79 बेटा, वेरी द फ्यूज. ब्याह ना करो यार प्लीज. डन. ओके ओके, लेट्स गो टू द लास्ट सम. सेक्शन एफ का लास्ट सम पे जाते हैं, पढ़ते हैं वो सम. चलो, दैट इज द 12th one. 11th we have done it previously. Let's do the 12th one. The information about the index x and the life expectancy y is obtained for 10 people. लिखो n is equal to 10. Everybody write it down. N is equal to 10. Now these data are ranked to find out the rank correlation and the sum of the squares of the ranks. Now sum of the squares of the ranks means sigma di square. Sum of the squares of the rank मतलब ये sigma di square दिया है 42.5. तो वो लिखो, sigma di square is 42.5. Now it was observed. Now this is most important. Those who have textbook, please underline this. जिनके पास textbook है, please underline this. It was observed that the health index 70 was repeated 3 times and life expectancy 45 was repeated twice. Underline the most important point. एक कुछ 3 बार रिपीट हो रहा है 70 और दूसरा कुछ 2 बार रिपीट हो रहा है 45. Find the rank correlation by using this information. Find the rank correlation using this information. Now,
Let me also write down the information, beta. Give me time. This is section F ka. This is section F ka sum number 12, the last sum, wherein n is given 10, sigma di square given to us is 42.5. Then they said one of the observations 70 is repeated 3 times and 45 एक observation है which has been repeated 2 times. और हमें rank correlation find out करना है, rank correlation. अच्छा, जब नंबर रिपीट होते थे तब हमने रैंक कोरिलेशन का एक फॉर्मूला को चेंज कर दिया था. तो मुझे थम्स अप दो, मुझे थम्स अप करके पहले कौन सा यूज करते थे वो वाला बताओ, फिर चेंज किया हुआ कौन सा है वो वाला बताओ. प्रथम भाई, प्रथम पटेल, प्रथम. हाँ प्रथम. हाँ बोलो सर. पहला कयो फॉर्मूला तो रैंक कोरिलेशन नो पहलो. સર આપણે રેન્ક કોરિલેશન નો તો પહેલા 1 minus 6 summation di square upon n bracket n square minus 1. Very good, Pratham. Can I say this was the formula which we started using it? Rank correlation 1 Yes. minus 6 sigma di square upon n square minus 1. Then we went Yes. on to the sums where we saw the numbers are getting repeated. Tie हो रहा है, tie. तो Yes. प्रथम उसका फॉर्मूला હતો ત્યારે tie વખતે સર 1 minus 6 summation di square plus cf upon n bracket માં n square minus 1. 1 minus 6 summation di square plus cf. cf શું હતું પ્રથમ? સર આપણે જે રિપીટેડ ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે ને તો એની પેલી ફોર્મ્યુલા હતી ને કે સમેશન બ્રેકેટમાં m ક્યુબ માઇનસ m अपॉन 12. क्या से जब रिपीट हो रहा है तब हमने जो वो पहला फॉर्मूला यूज किया वो नहीं कर सकते हैं, तो फॉर्मूला में थोड़े करेक्शन लाने पड़ेंगे. तो फॉर्मूला में जो हम करेक्शन लेके आते हैं दैट इज सेड टू बी करेक्शन फैक्टर CF. तो मेरा करेक्शन फैक्टर देखो क्या आया बेटा, करेक्शन फैक्टर यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 1 minus 6 sigma di square plus CF upon n square minus 1. तो બધું જ છે મારી પાસે, करेक्शन फैक्टर નથી. तो करेक्शन फैक्टर कैसे मिलेगा उसका टेबल बनाते हैं. चलो, करेक्शन फैक्टर कैसे मिलेगा? करेक्शन फैक्टर कैसे मिलेगा? ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रहा है कितनी बार, एंड देन द करेक्शन फैक्टर, then the correction factor m cube minus m divide by 12. उसका टोटल कर देने का, तो 70 has been repeated thrice, 45 has been repeated twice. So 3 cube minus 3 divided by 12. So 3 cube. बेटा ऐसा ही आएगा ना, m cube minus m divide by 12. So 3 cube कितना आ रहा है बेटा? 27. 27 minus 3 divide by 12, that is 24 by 12, that is 2. Then 2 cube minus 2, 2 cube minus 2 upon 12. So 8 minus 2 divided by 12. So 6 divided by 12 which is 0.5. इनका समेशन करो तो समेशन आएगा 2.5. So मेरा करेक्शन फैक्टर का आंसर आ रहा है 2.5. And now we put this in the information. 6 sigma di square was 42.5 plus correction factor of 2.5 upon n is 10 square minus 1. So 1 minus 6 into 1 minus
6 into 42, तो ये 45 हो जाएगा. This will become 99. So 1 minus 6 into 45, if I do, that comes to 270. Divide by 990. So पहले 270 को डिवाइड करो 990 से 0.27. So 1 minus 0.27. तो मेरा फाइनल आंसर है 0.73. My final answer is 0.73. Final answer is 0.73. तो यहां पर वो रिपीट हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन. उसमें जो CF ढूंढने का था, that was the only point which was to be taken care of. Rest all the information was given to us. क्या बोलते हो? और हमें फॉर्मूला भी नहीं पता था, तो वो भी मैंने बता दिया. क्या बोलते हो सर? फॉर्मूला खबर હતી આ ખાલી એક બે વસ્તુ ખાલી ભૂલી જવાય છે ફોર્મ્યુલામાં. n મૂકવાનું ને એ બધું મૂકવાનું ભૂલી જવાય છે. બાકી બધું જ યાદ છે. એવું મને ટોન ના મારશો, મને બધું જ યાદ છે. બરાબર? So with that, finally we conclude the chapter. Tomorrow we'll start with the new chapter.